welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा daily dose of Bollywood news, fashion trends, TV and social media से जुड़े हर update. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. दशहरा के अवसर पर मोनी रॉय ने किया Zoom से exclusively interact. कौन-कौन से सेलेब्स आए हैं NCB के निशाने पर? शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला से जुड़ी किस न्यूज को देखकर फैंस हुए इमोशनल? আপনাদের সবাইকে a very happy and prosperous Durga Pujo. There's a kahavat in Bengali, sir, 12 মাসে 13 পার্বণ, which means in 12 mahine mein we have 13 festivals. The Ma was actually there. Ma is actually there during the Pujo time, which is why it makes it so special. Also Navratri, after that Kali Pujo, then Diwali. I am very confused between talking in Hindi, Bangla and English. Hello everyone, my name is Rudrani and welcome to Speak Easy. Today my guests are very musical and are bringing in the royal vibes. I'm talking about the very talented Moni Roy and of course Jatinder Ji. Thank you so much. Thank you for joining in. Thank you so much for having us. Thank you. We've been How are you, Rudrani, first of all? I know, how are you? I'm very well. Shubho Shoshti. Shubho Shoshti. It's Shoshti, it's Durga Puja and I think I'm feeling good. It's so much better than the last time we spoke. The world has opened up a little bit. Yeah. But I'm good. Thank you for asking. And you're looking lovely, by the way. Thank you so much. So are you? I was talking about the grandeur of the song. और जैसा कि हम beginning में कह रहे थे कि it gives you very Sanjay Leela Bhansali vibes with the grandeur and you know the entire look and the way you've dressed, and it's got that ancient. The name of the song is Joda, but it also gets you a little bit of Jodha Akbar vibes. It gets like all Bansali फिल्मों की एक vibes तो आती है गाने. देखिए ये बात बिल्कुल मैं ना तो इग्नोर करूंगा ना मैं ये इसको हाइड करूंगा. ये मुझे जो इसका आइडिया जो जहन में कहीं था, मैंने बाजीराव मस्तानी देखी थी ना जी. मैं थोड़ा सा ना घरेलू टाइप और अपने गुरुजी के पास बहुत टाइम व्यतीत किया, तो मैं म्यूजिक के अलावा और आर्टिस्टिक बातों के अलावा मतलब इस शहर में आए मुझे 18 साल हो गए, कोई मतलब कहीं जाता नहीं मैं ज्यादा, मतलब मैं अपने स्टूडियो में अपने घर में, वही मुझे अच्छा लगता है. ये जब पिक्चर देखी, क्योंकि संजय जी बहुत कमाल के मेकर हैं, बहुत कमाल के, तो मुझे उसमें जो काशी का करैक्टर था वो कहीं छुआ कि एक औरत जो रानी भी है पदवी से और पत्नी भी है, बहुत बड़ी पदवी होती है, तो मुझे वो कहीं ना कहीं मेरे जहन में था. तो वहीं से वो बात निकलती कि वो काशी ने क्या महसूस किया. हम इश्क कर सकते हैं लेकिन रिश्ते से बड़ा इश्क नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है. तो मुझे वहीं से कहीं वो माइंड में था, तो वही वो एरा क्रिएट होता गया और कुछ नया बना, लेकिन काशी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना मस्तानी ना, लेकिन कि काशी ने क्या महसूस किया. और वो मोनी जी ने जो स्क्रीन पे दिया, मुझे नहीं लगता कि मैं अगर शायद मैं कहीं और काम करता तो शायद वो चीज ना मिलती. Like he mentioned, was that also told to you that way? The fact that you're bringing in forward कि काशी का perspective is what you're going to show. Yes, no, not exactly Kashi, but yes, हमने वो बाद में discuss किया. But in the beginning, मैं एकदम शुरू से शुरू करती हूँ. First I heard the song, I absolutely loved it. I thought, and you know, the grandeur that you're talking about, I think it's somehow, if you listen to the audio, it is so strong. He has made it so beautifully. The writers have written it so beautifully. Also, Afsana has sung it so, it's like she has such strength in her voice. So मुझे पता था that this song will be shot in a very big lavish way. There won't be any you can't do a shortcut with a song like this. Like you have to go all the way and do it with all the tamjham. So and after that our conversation started and discussion. So पहली बात जब first time only I spoke to him, he told me how he needed my 100% and the fact that I'm a Bengali and the whole song is in Punjabi, so the lip sync has to be correct. So I had to memorize the song. So he told me the meaning of the entire song also. And sometimes मैं भूल जाती थी ना, तो I used to ask somebody from my team कि please सर को पूछो ना इन lines की मतलब correct कि meaning क्या है, क्योंकि meaning के बिना I didn't want to work. So it was a long process. So जब आपका prep work इतना होता है तो आपको पता है कि आप
shoot ke din there won't be any a lot of time for or scope for a lot of mistakes, or they must be very well prepped with. And we shot at a beautiful location, at a beautiful mahal, literally in Jaipur. So yeah, I wasn't expecting anything less than this, but we have really worked very hard on this song. This is not shot like an usual song, you know, where you go and like easy breezy. The outfits. Also, talking about Ali, I think he's done such a brilliant job with his character, you know, and I couldn't have imagined a better co-star. He's so patient, so nice, so Bilkul, bilkul. and we're missing him here today, actually. It's great, right? And I feel like you know, the songs that you pick have this slight rustic Indian traditional vibe to it. And that is, I think, Those are the songs that are coming to me also. Let's just be very honest. Yeah. But tell me, Moni, what are you also looking forward to? I know there are a lot of things happening in your career as well. Tell me the kind of films that you're looking forward to and what's happening. Well, I'm waiting for Penthouse to release. It's a Netflix original. Of course. Brahmastra. I have signed two new things, but I can't talk about them. And I'm very excited to start shooting. The announcement should come from the makers, I guess. And that should happen soon. So let's say the next few months is going to be very busy. I feel like now that the since you brought up the Brahmastra subject, you're playing the antagonist, and then of course the real life couple Ranbir and Arya coming together. I think there's a lot of anticipation around that as well. And I feel it only rises, right? Now, when do you get to finally talk more about it? আমি সত্যি জানি না, মিথ্যে কথা বলছি না. I don't think anybody knows. I am sure now that the theaters are opening up, they'll also. Yeah. It is Durga Puja. We are still in a pandemic. But tell me, you know, how excited are you? How are you going to spend this entire week? No, I'm working every day, but I just want to do my Anjali on Ashtami, Mahashtra. So I just hope I get to do that. That's all. And tell me, why is Durga Puja special to you? I mean, it's obviously special to us, we are Bengalis. But because what is it that... Adya Ma coming between us, because it's Pujor Bandho. It's like the smell in the air is different. It's like, because that is how we celebrated life, literally. I'm sure you also know, all year long, you would only wait for Durga Puja to come. To, you know, have that bhog, do the Ashtami Anjali, and then have that bhogir prasad. And I'm very confused between talking in Hindi, Bangla, and English. That's right. So, you know, wearing those, even as a little girl, I remember we used to all wear those cotton saris and, you know, chota blouse and chota saris. So it was a different, I feel like, the Ma was actually there. Ma is actually there during the Puja time, which is why it makes it so special. Also Navratri, after that Kali Pujo, then Diwali. So this time is, and you know, there's a kahavat in Bengali, sir, Baro Mashe Teru Parbon, which means in 12 mahine mein we have 13 festivals. So our main has always been the Durga Puja, which is why it's very, very special. You're going to miss home and family, because I am missing a lot. No, I am missing my family. I always miss them, honestly. They come and stay with me for 3-4 months in a year. Because of the pandemic, I haven't been home in like 3 years. So I really hoped that my mom would be here. But, you know, my brother has started a new job in Kolkata. And then mom is very happy with her brother and sister. So I didn't want to kind of, you know, puncture her happiness. So she's very happy there, which makes me very happy. And this Pujo has to be without family. Last year also we were together. Year before that we weren't because of because of COVID. So yeah. Well, I hope you have a great Pujo. Happy Durga Puja to you. Happy Durga Puja. Happy Navratri. Happy Navratri to Jatinder ji as well. আপনাদের সবাইকে a very happy and prosperous Durga Pujo. কিন্তু pandemic এখনো শেষ হয়নি. The pandemic is not over yet. So please follow all the protocols. Yes, do your pujo at home. Maybe visit a pandal for you know, all your anjalis. But please be safe, and please take precautions. Thank you so much. All my love. Thank you so much. Thank you, Jatinder ji. Lots of love. Lots of love, Moni. Bye. Coming up on the show, कौन से सेलिब्रिटी कपल ने सोशल मीडिया के जरिए किया अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल?
आर्यन खान की अरेस्ट के बाद फिर उठा एक बड़ा सवाल। क्या बॉलीवुड फंसा है नशे के जाल के अंदर? क्या बॉलीवुड में बैन सब्सटेंस कंज्यूम करना है आम बात? एनसीबी की बैन सब्सटेंस के खिलाफ जंग ने उड़ाई सेलेब्स की नींद। रिया चक्रवर्ती से लेकर आर्यन खान तक के केस की पूरी अपडेट। 2 अक्टूबर को एनसीबी ने डाला एक लग्जूरियस क्रूज पर रेड और अलेजिडली यहाँ चल रही थी रेव पार्टी और इस पार्टी से एनसीबी ने लिया शाहरुख खान के बेटे को अपनी हिरासत में और आर्यन खान के इस केस में अरेस्ट होते ही फिर से बॉलीवुड और नशे की दुनिया को एक नाम से जोड़कर देखा जाने लगा है। वैसे फिल्म इंडस्ट्री हमेशा से बैन सब्सटेंस के कंजम्पशन को लेकर बदनाम रही है। संजय दत्त से लेकर कंगना रनौत ने बैन सब्सटेंस के कंजम्पशन की बात एक्सेप्ट की थी, लेकिन लास्ट ईयर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की सैड डिमाइस की न्यूज आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जैसे ही हरकत में आया और धीरे धीरे जैसे सेलेब्स का नाम बैन सब्सटेंस केस से जुड़ा, वो काफी सरप्राइजिंग था। सबसे पहले इस केस में नाम आया एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती का। इन दोनों को एनसीबी ने अपनी हिरासत में लिया और कई दिनों तक ये जेल में रहे। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती दोनों पर ही बैन सब्सटेंस कंजम्पशन से लेकर उसके दूसरों को देने तक का एलिगेशन लगाया और इसी जांच के बाद रिपोर्ट्स आई कि और भी कई सेलेब्स से एनसीबी पूछताछ कर सकती है, क्योंकि इन सेलेब्स का नाम एक अलेजिड चैट में सामने आया था। और फिर क्या था, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर से लेकर रकुलप्रीत सिंह और दीपिका पादुकोण से एनसीबी ने पूछताछ की, लेकिन इन सेलेब्स को कभी एनसीबी ने किसी रॉन्ग डूइंग के लिए डायरेक्टली अक्यूज नहीं किया। इसके अलावा बिग बॉस फेम कंट्रोवर्शियल एक्टर एजाज खान को एनसीबी ने एक ड्रग माफिया से कनेक्शन और उनके घर से मिले बैन सब्सटेंस के बाद गिरफ्तार किया था और रिपोर्ट्स के मुताबिक एजाज खान पर अब एनसीबी ने सीरियस चार्जेस लगाए हैं और यही वजह है कि वो अभी भी जेल में हैं। वैसे एजाज खान ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया था। एजाज खान के अलावा एक और स्मॉल स्क्रीन एक्टर गौरव दीक्षित को एनसीबी ने अरेस्ट किया था और गौरव दीक्षित पर आरोप था कि उन्होंने एजाज खान को बैन सब्सटेंस सप्लाई किए थे। वहीं एक्टर अरमान कोहली के घर पर भी एनसीबी ने अगस्त महीने में रेड डाली थी और उनके घर से रिपोर्टेडली बैन सब्सटेंस रिकवर किए गए थे और एनसीबी ने अरमान कोहली को हिरासत में ले लिया था। इन एक्टर्स के अलावा कॉमेडियन भारती सिंह और उनके हस्बैंड हर्ष लिम्बाचिया को भी एनसीबी ने हिरासत में लिया था, क्योंकि उनके घर पर पड़ी रेड में अलेजिडली एनसीबी को बैन सब्सटेंस मिला था। लेकिन कुछ समय बाद ही भारती सिंह और उनके हस्बैंड को इस केस में बेल मिल गई थी। एनसीबी का कहना है कि उन्होंने मुंबई में बैन सब्सटेंस के खिलाफ मुहिम चला रखी है और आए दिन वो लोगों को अरेस्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही किसी बॉलीवुड सेलेब का नाम इन केसेस से जुड़ता है, ये मामला हाई प्रोफाइल बन जाता है। एनसीबी के इन एक्शंस के बाद आपको क्या लगता है? क्या फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से बैन सब्सटेंस के जाल में फंसी हुई है? अपने व्यूज हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। में 2021 में एक्टर्स ने सोशल मीडिया पर अपनी लव लाइफ को किया अनाउंस। सोशल मीडिया के जरिए कई सेलेब्स ने अपने प्यार का किया इजहार। क्या सोशल मीडिया बनता जा रहा है सेलेब्स के लव कन्फेशन का प्लेटफॉर्म? रकुलप्रीत सिंह और जैकी भगनानी से लेकर विद्युत जामवाल और नंदिता मेहतानी ने इस साल अपने प्यार को कबूल किया ऑफिशियली ऑन सोशल मीडिया और इन सेलेब्स के इन्हीं कन्फेशंस पर डालेंगे नजर। रकुलप्रीत सिंह और जैकी भगनानी। हाल ही में रकुलप्रीत सिंह ने अपने बर्थडे पर फैंस को अपनी लव लाइफ के कन्फेशन से चौंका दिया। अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर प्राइवेट रहने वाली रकुलप्रीत सिंह ने अनाउंस किया कि वो जैकी भगनानी के साथ डीपली एंड मैडली हैं इन लव और जैकी भगनानी ने भी सेम पिक्चर के साथ रकुलप्रीत सिंह के लिए अपने प्यार का किया इजहार। विद्युत जामवाल और नंदिता मेहतानी। इस साल सितंबर में विद्युत जामवाल ने अपनी लेडी लव नंदिता मेहतानी के साथ अपने रिलेशनशिप को भी ऑफिशियल किया। विद्युत जामवाल ने नंदिता मेहतानी को प्रपोज भी कमांडो स्टाइल में ही किया था। सोशल मीडिया पर नंदिता मेहतानी के साथ अपनी पिक्चर शेयर करते हुए विद्युत जामवाल ने लिखा, डिड इट द कमांडो वे।
इसके बाद ये लव बर्ड्स ताजमहल विजिट करने भी गए। इनकी रोमांटिक ताजमहल विजिट से आई ये तस्वीर काफी खूबसूरत है। इस पिक्चर में ये दोनों लव बर्ड्स व्हाइट में ट्विनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। किम शर्मा और लिएंडर पेस। 2021 किम शर्मा और लिएंडर पेस के लिए भी बेहद खास है। एक साथ कई ओकेजन्स पर साथ दिखने के बाद फाइनली इन दोनों ने अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर ही दिया। किम शर्मा और लिएंडर पेस दोनों ने ही अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस पिक्चर को शेयर करते हुए अपने रिलेशनशिप को पब्लिक किया। यही नहीं, इन दोनों के गोवा में ड्रीमी वेके के रोमांटिक पिक्चर्स भी सोशल मीडिया पर हुए वायरल। अभय देओल और शिव सुलेमान। अभय देओल के लिए भी 2021 काफी स्पेशल है। अपनी लेडी लव शिव सुलेमान के साथ 3 पिक्चर्स सोशल मीडिया पर शेयर करके उन्होंने अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर दिया। इन पिक्चर्स को अभय देओल ने कैप्शन दिया, fluid, free, flowing, creative, soothing, fun, fearless, sensual, calming, inspiring, dynamic, talented, sexy. Oh, and add Shiv Suleiman is all of those things too. अभय देओल के लिए इस कैप्शन पर शिव सुलेमान ने कमेंट करते हुए लिखा, Nothing taboo on this table. More adventures soon. विक्रम भट्ट और श्वेतांबरी सोनी। फिल्म मेकर विक्रम भट्ट ने अपनी गर्लफ्रेंड श्वेतांबरी सोनी से लास्ट ईयर ही शादी कर ली थी, लेकिन विक्रम भट्ट ने इस न्यूज को दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा हुआ था और फाइनली रिसेंटली इस पिक्चर के साथ सोशल मीडिया पर अपने लव को विक्रम भट्ट ने कन्फेस किया था। सेलेब्स के इन सोशल मीडिया कन्फेशंस को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि ये प्लेटफॉर्म्स बनते जा रहे हैं लव लाइफ को अनाउंस करने की न्यू डेस्टिनेशन। मैं अपने आप नू कहूंगी हौसला रख, मैं अपने आप नू कहूंगी हौसला रख। सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल के आखिरी प्रोजेक्ट को लेकर आई अपडेट। सिडनाज के आखिरी सॉन्ग अधूरा को लेकर फैंस हुए इमोशनल। सिडनाज के फैंस इस सॉन्ग के बिहाइंड द सीन्स को कर रहे हैं वायरल। क्या ये सॉन्ग बनेगा मोस्ट वॉच्ड सिंगल सॉन्ग एवर? सिद्धार्थ शुक्ला ने अपनी डिमाइस से काफी पहले शहनाज गिल के साथ गोवा में एक सॉन्ग की शूटिंग की थी। इस सॉन्ग के आधे पार्ट को तो ये दोनों शूट करने में कामयाब हो गए थे और बाकी पार्ट्स को वो कुछ समय बाद शूट करने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस सॉन्ग को पूरा करने से पहले ही सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया को छोड़ गए और रिपोर्टेडली मेकर्स ने इसी वजह से इस सॉन्ग के टाइटल को चेंज करके अधूरा कर दिया है। पहले इस सॉन्ग का नाम हैबिट रखा गया था। मेकर्स ने इस सॉन्ग की अनाउंसमेंट करते हुए लिखा, एक अधूरा गाना, एक अधूरी कहानी, #अधूरा कमिंग सून। वैसे सोशल मीडिया पर फैंस ने सिडनाज की गोवा शूटिंग की कुछ पिक्चर्स को ऑलरेडी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करना शुरू कर दिया है। इस अनाउंसमेंट को सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाते हुए एक फैन ने लिखा, इट्स नॉट अधूरा, इट्स पूरा, इट्स हैबिट ऑफ ऑल ऑफ अस, #Sidnaz habit in a positive way, love, #Sidnaz, #Siddharth Shukla, #Shehnaz Gill. All fans want to cherish and celebrate their happiness, love. वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, Habit is supposed to be our cute song. They've shot it with so much of happiness, cuteness and playful mood. एक और यूजर ने लिखा, Habit will be blockbuster when released. साफ है फैंस इस सॉन्ग की अनाउंसमेंट पर से काफी इमोशनल हो गए हैं। वहीं शहनाज गिल अपनी फिल्म हौसला रख को प्रमोट कर रही हैं और उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान रिवील किया कि वो खुद एक ही बात को समझने की कोशिश कर रही हैं, हौसला रख। वहीं शहनाज गिल ने अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान लव और अटैचमेंट को लेकर बात की है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। शहनाज गिल ने कहा, प्यार जो है ना, मतलब माँ का जो प्यार होता है ना, वो माँ को ही पता है और मैं माँ वाला फील कर सकती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी मुझे कितना प्यार करती हैं। वहीं शहनाज गिल दिलजीत दोसांझ स्टारर फिल्म हौसला रख का नया सॉन्ग सुरूर रिलीज हो गया है एंड फैंस आर एब्सोल्युटली लविंग द भांगड़ा। शहनाज गिल के साथ उनके फैंस सॉलिडेरिटी दिखाकर साथ खड़े हैं और अब जिस तरह धीरे धीरे शहनाज गिल पब्लिक इवेंट्स पर नजर आ रही हैं, वी कैन होप कि वो जल्द मूव ऑन करने में कामयाब हो जाएंगी।